Good morning to all. This is geography lecture. Today we will read natural vegetation from the book Discovering the World. So open your book at page number 138. In the previous assignment we discussed about the various types of the vegetation. First one is evergreen foresters, second one is deciduous foresters. In this assignment we will discuss tropical desert. So the area having rainfall of less than 70 cm supports this type of vegetation. यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम होती है उस एरिया को ट्रॉपिकल डेजर्ट बोला जाता है. ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर द ट्रीज ग्रोइंग हियर हैव वेरी स्मॉल लीव्स एंड दे स्पोर्ट थॉर्न. The common species found here include babool, acacia, kikar, wild palm in the areas of moderate rainfall. ओके बच्चे, तो यहाँ पे मॉइस्चर की कमी होती है जिसके कारण ट्रीज़ की जो पत्तियाँ हैं वो बहुत कम होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और उनके साथ कंडे होते हैं. यहाँ पे जो मेन ट्रीज़ होते हैं वो बबूल, अकेशिया, किक्कर और वाइल्ड पाम इन एरियाज़ में पाए जाते हैं. In areas of more scanty rainfall, the vegetation consists of scrub, shrub and thorny bushes. The main feature of thorny foresters are that the trees are scattered and have long plant roots penetrating deep into the soil and spreading in a radial pattern in the search of water. Leaves are small and thick to minimize loss of water. तो इसमें जो है बेटा लीव्स जो हैं बहुत स्मॉल होती हैं. क्यों स्मॉल होती हैं? क्योंकि मॉइस्चर की कमी होती है. और ये स्मॉल और थिक होने का एक कारण ये भी है कि इसमें वाटर का जो लॉस है वो मिनिमाइज कम से कम हो जाता है. प्लांट्स की रूट्स हैं जो अलग अलग साइड्स को स्प्रेड हुई होती हैं. द एरियाज राजस्थान, गुजरात, parts of Punjab, Haryana and dry parts of Madhya Pradesh and of the Deccan Plateau and the rain shadow area of the Western Ghat have this type of vegetation. बच्चे सो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ड्राई पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में ऐसी जो है एरियाज़ माने जाते हैं. डिकेन प्लेटू में, बट वेस्टर्न घाट इसका जो शेडो एरिया है, शेडो एरिया अपोजिट साइड जिस साइड पे रेन जो है उसकी कमी होती है और जो फ्रंट वाला साइड है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं लेकिन शेडो एरिया में ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं. बबूल लीव्स, bark, pod and the gum have medicinal virtue. The leaves and the bark are useful in अरेस्टिंग सेक्रेशन ऑफ ब्लीडिंग. ये सारी चीज़ें जो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आती हैं. द पॉड्स हैव रिमूव कैट्रल मैटर. द गम एलिज एन इरिटेशन ऑफ द स्किन एंड soothes the inflamed membranes of the pharynx, alimentary canal and genitourinary organs. ये इनके बेटा मेडिसिन के लिए कौन सी जो है ट्री किस मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है ये सब बताया गया है इसमें. द बार्क ऑफ बबूल ट्री इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्जिमा. डेट पाम इज़ हार्वेस्टेड फॉर इट्स एडिबल फ्रूट. डेट पाम जो है वो खाने के लिए उगाई जाती है. Palm oil is an edible vegetable oil produced by the oil palm. Palm sap is sometimes fermented to produce palm wine or toddy, an alcoholic beverage.
Coir is a coarse, water-resistant fiber extracted from the outer shell of the coconut. Used in doormat, bushes, mattress and ropes. Some indigenous group living in palm-rich area use palms to make many of their necessary items and food. इसमें बच्चे कुछ फूड जो प्लांट्स हैं वो इस एरियाज़ में उगाए जाते हैं खाने के लिए, कुछ से हमें ऑयल मिलता है, बहुत सारे मेडिसिन यूज़ के लिए उगते हैं, और बाकी जो है उनसे अल्कोहल भी बनती है, ड्रिंकेबल मटेरियल भी बनता है। ओके, और जो बाकी बचा कोकोनट और कोकोनट शेल, उससे डोरमेट, ब्रशेस, मैट्रेस, रोप, ये सारी चीज़ें जो है वो बनती हैं। द bark and seed of kicker are the source of tannin. The various parts of kicker are useful in diarrhea. The leaves and the bark are useful in arresting secretion or bleeding. The pods help remove catral matter and phlegm from the bronchial tube. It is widely used for firework and timber. It is introduced and cultivated for erosion and fuel wood. Flowers are used for ornamental purpose. Leaves serve as fodder for goats, fodder जिसमें खाना डालते हैं. Also used in fencing and hedge. फेंस करने के लिए, बाड़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं. Its wood is used for prepare production के काम आती है. It is also sometimes used as the gum के तौर पे भी इसे यूज़ किया जाता है. सो बच्चे नेक्स्ट इज लिटोरल और स्वैम्पी फॉरेस्ट. लिटोरल और स्वैम्पी फॉरेस्ट these forests occur in and around the deltas, estuaries and creek prone to tidal influence and such are also known as delta or swampy forest. यहाँ पे बेटा पानी तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, मीन्स समुंदर के जितना नहीं होता, डेल्टास होते हैं. ठीक है, ऐसी जगहों पे इन ट्रीज को पाया जाता है. दे आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडमान और निकोबार, अब आप बोलोगे कि साइड्स पे तो बहुत पानी है, ये तो समुंदर में है. ठीक है, समुंदर में है, लेकिन वहाँ पे जो ट्रीज आइलैंड के ऊपर पाए जाते हैं वो इस तरीके के होते हैं. एंड द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल में डेल्टा है. कौन सा डेल्टा है वहाँ पे? ब्रह्मपुत्र डेल्टा. वहाँ पे सुंदरबंस पाए जाते हैं. दे आल्सो अकर एट several places along the coast. Swamp forests are confined to the deltas of the Ganga, the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. The most peculiar feature of these forests is that they can survive and grow both in fresh as well as brackish water. ये दोनों ही वाटर, फ्रेश और ब्रैकिश वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं. एरियल रूट्स इनेबल द प्लांट्स टू ब्रीथ इन एयर. एरियल रूट्स जो इनकी होती हैं, ये देखो, तो ये इनको ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री इज सुंदरी ट्री. कहाँ पे पाया जाता है ये? सुंदरबंस में. सुंदरबंस को सुंदरबन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्री पाया जाता है. और सुंदरबंस कहाँ पे है? मोस्टली गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है. ट्री आफ्टर विच द सुंदरबंस आर नेम्ड. इट प्रोवाइड्स हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर. कैसी टिम्बर मिलती है वहाँ पे? हार्ड एंड ड्यूरेबल.
which is used for construction and building purpose as well as for making boats. The important species found in these forests are Sundari, Bulgaria, Sonorata, Agar, Bhendi, Kora, Nipa, Amor, Bhara, Rhizophora, screw pine, canon and palm, hintel, etc. नेक्स्ट टाइप इज़ माउंटेन वेजिटेशन। तो इसमें लिटोरियल स्वैम्पी फॉरेस्ट में हमने क्या रीड किया है कि ये फॉरेस्ट जो हैं डेल्टास में पाए जाते हैं। इनमें ऐसे ट्रीज होते हैं जो ब्रैकिश वाटर एंड फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी एरियल रूट्स होती हैं जो इनको ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं। और इनकी कौन सी टाइप्स हैं? इसमें ज़्यादातर सुंदरी नाम का ट्री जो है वो आ जाता है। सुंदरी ट्री कहाँ पे मिलता है? सुंदरबन फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। और ये नीचे काफ़ी सारे ट्रीज जो हैं आपको दे रखे हैं, इनमें से आपने 2 और 3 यू विल लर्न ओनली। माउंटेन वेजिटेशंस। द हिमालयाज हैज़ अ नेचुरल कवर ऑफ वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू सब आर्कटिक। The climate conditions are changed with altitude and the direction of slope in relation to sun. Altitude और direction होती है जो slope की, उसका सूर्य के साथ क्या रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वेजिटेशन वो डिफरेंट होती है। इन द हिमालयन रीजन द नॉर्दर्न स्लोप्स यूजुअली रिसीव द सन रेज। हिमालयन रीजन में ज़्यादातर सन रेज पड़ती हैं। ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द डे, दिन में कुछ घंटों के लिए पड़ती हैं। एट द लो एंगल, लो एंगल पे होती हैं, एंगल हाई नहीं होता, लो होता है। इन कंट्रास्ट, और इसके अपोजिट सदर्न स्लोप्स रिसीव कंपैरेटिवली वर्टिकल रेज, वहाँ पे वर्टिकल रेज पड़ती हैं। और मिडल ऑफ द डे कब पड़ती है? ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द डे। एज अ रिजल्ट द सदर्न स्लोप्स बीइंग वार्मर, इसी के रिजल्ट के तौर पे सदर्न स्लोप्स जो हैं ज़्यादा गर्म होती हैं। जो ज़्यादा गर्म होती हैं वहाँ पे कैसी वेजिटेशन होती है? यू नो बेटर। Fall in the area of greater evaporation. Consequently, the vegetation is up to higher altitude on the southern slope than on the northern slope. The altitude is the most important factor controlling the type of vegetation in this mountainous region. Vegetation is the in the foothill zone is similar to that the neighboring plains. जो हिल के निचले एरिया में जो वेजिटेशन होती है, फुट हिल, यहाँ पे प्लेन के अकॉर्डिंग ही वो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है हाइट का, वहाँ पे जो है वेजिटेशन वो वहाँ के प्लेन एरिया के अकॉर्डिंग ही होती है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स आर देयर फॉर द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द फुट हिल जोन। Sal is one of the most important trees growing in this zone, especially in the central and eastern part of the Himalayas. तो कौन सा ट्री है? सल। Above the tropical deciduous forests is found the subtropical hill vegetation. In this zone are found the forests of evergreen, oak, chestnut and pine trees. Between the altitude of 1600 meters and 3300 meters lie the belt of the coniferous trees such as blue pine, silver fir, cedar. ये बेटा प्रजातियों के नाम है, ट्रीज जैसे यहाँ पे पाए जाते हैं। This belt is followed by the belt of alpine flora at the altitude of more than 3500 meter. Okay. Where the vegetation consists of shrubs, scrub and grasses. The upper limit of the alpine vegetation is permanently snow line above which no plants grow. जो ऊपर वाली लाइन है हिमालय की वहाँ पे तो परमानेंटली स्नो पड़ी रहती है, तो वहाँ पे तो वेजिटेशन होती नहीं है। लेकिन जो उससे नीचे है उस बेल्ट में 3500 मीटर तक हम देखते हैं ऊंचाई जो है उसकी, वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो श्रब्स, कर्व और ग्रासेस होते हैं। लेकिन 1600 मीटर से 3300 मीटर तक बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर देयर।
The wood of oak is hard and tough, used since ancient times for general construction purposes as pillar, tool, wagon, vessel and wine casks. It is firewood or in charcoal manufacture. ओक ट्री मिलता है वहाँ पे, ओक की जो है वुड मिलती है, इन सब पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है. Pine are among the most commercial important of tree species, valued for their timber and wood, pulp, tar, and for their use as ornamental throughout the world. The wood of silver fir is soft and not very strong. जो सिल्वर फर है उसकी वुड सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर. पेपर मेक करने के लिए किस चीज़ की जो है वुड यूज़ होती है? सिल्वर फिर. पैकिंग, क्रेट्स एंड अदर चीप कंस्ट्रक्शन वर्क्स. देवदार इज़ इन ग्रेट डिमांड एज बिल्डिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी. देवदार की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, नॉट रेसिस्टेंट करेक्टर एंड फाइन क्लोज ग्रेन, which is capable of taking high polish. ओके बच्चे, इसमें पॉलिश बहुत अच्छी होती है. Its historical uses to construct religious temples and as landscapes around temples is well recorded. टेम्पल्स वगैरह में जो वुड लगी हुई है वो देवदार की है ज़्यादातर. इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश colonial period देवदार वुड was used extensively for construction of bricks, public buildings, bridges, canals and railway cars. पुराने ज़माने में ब्रिटिश टाइम में ये ब्रिज बनाने के, कैनल बनाने के, रेलवे कार्स बनाने के काम में जो है वो आती थी. In next assignment we will discuss deforestation and needs for conservation of forests. Thank you.